محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آتیوا اللہ وآتیوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ عزیز ماں اور بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہم تمام کو ایک جگہ جمع کیا تاکہ دین کی باتوں کو جان سکے، سمجھ سکے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکے۔ آپ کا آنے کا مقصد، میرا آنے کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے کہ دین کی باتوں کو جانیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو مسلمان بنا دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے ہم پر۔ غیر مسلمان سے سب مسلمان کا سفر بہت لمبا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مشکل ہم پر دیاش نہیں، ہم نے مسلمان بنا دیا، الحمدللہ۔ مسلمان کے بعد ہم کس طرح سے رہنا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسا معجزہ ہمارے تک پہنچا دیا۔ اس کا نمونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے ہمارے واسطے دنیا میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کو اپنی زندگی کس طرح سے قرآن کے روشنی میں جینا بول کو سکھا ڈالے۔ آج مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے، اسلام میں عورتیں، اسلام میں عورتیں اچھی ہیں، اسلام میں عورتیں بری ہیں، سبھی نہیں، دین اسلام میں عورتیں۔ اب اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا وقت کم لیکن ٹاپک زبردست، تو وقت بیکار نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم نہ منجے مسلمان بنا دلیا، بولی میں الحمدللہ۔ ابھی مسلمان کی زندگی کو ہمیں کہاں تک پورا کرتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں بولے کہ مسلمان کے لیے جنت ہے۔ ہم ایک خیال میں ہی کہ ہم مسلمان بن گئے، مسلمانی نام رکھ لیے، برقع پہن لیے، عائشہ فاطمہ ہو گئے تو ہم جنت میں ضرور ضرور جائیں گے۔ نہیں، قرآن مجید کے اگر 30 کتاب بھی تمہیں چھان مارو، کہیں بھی نہیں لکھا گیا ہے کہ تمہیں مسلمان ہو گئے تو تمہارے لیے جنت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوں گا، سو بولتے۔ مومن کون ہے؟ جس کے ایمان کے بارے میں کون بھی میجر نہیں کر سکتے اس کے پاس کتنا ایمان ہے بول۔ اب وہ ایمان ہمارے پاس لے لڑکانا کیسا لا لگیں گے؟ استقامت رہے تو ہمارے اندر صرف اللہ سے محبت، صرف اللہ کے واسطے ڈرنا بول کو رہا تو جو استقامت قامت کیا رہے گی ہمارے پاس، قائم دائم رہیں گی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، احسب الناس، لوگ یہ گمان کر لیں ہیں کیا بولتے اللہ تعالیٰ، احسب الناس، لوگ یہ گمان کر لیں ہیں کیا، یقولوا آمنا، ہمیں ایمان لے لگ آگے بول دلے تو ہمیں ان کو معاف کر دلیں گے۔ پوچھتے اللہ تعالیٰ، وہم لا یفتنون، ان کو ضرور میں آزماؤں گا۔ آزمائش کر کو، جھنی کر کو، ہمیں کون اچھے اعمال کرتے دیکھو تو اللہ تعالیٰ ہم نے جنت میں ڈالیں گا۔ تمہیں بہت سے بیانوں کو جائے رہیں گے، بہت سے اجتماع میں سنے رہیں گے، اسلام میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ ماشاءاللہ اب بچنا کرے، ایک بڑے عالم کا جماعت میں جا کو ہمیں بیانہ سنے سکا تھا، بچوں کی زبان سے آیت حدیث دعائیں، ماشاءاللہ یہ ہمارے عورتوں کے پاس نہیں ہے۔ بچوں کو ایک ڈر ہے جس کی وجہ سے استاد کا ڈر، پرائز لینا ہے اور نام کمانا ہے، بول کو کیا کرتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، الحمدللہ اللہ قائم رکھنا وہ چیز۔ ہمیں عورتیں کیا کرتے ہیں، ہمیں عورتاں اخبت کیا کرتے، دنیا کے واسطے جی لگو ہی، دنیا کو خوش کرنا، رشتہ داروں کو خوش کرنا، اس کے واسطے جی لگو ہی، ہمیں مقصد پیدائش بھول گئے ہی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو انسانوں کو میری عبادت کے واسطے پیدا کریا، بولتے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں عبادت سے مراد کیا کر لیں ہی، چند عبادت کو چن لیے، جیسے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، زکوٰۃ دینا کر لیے ہی، لیکن مین بات کیا ملم، متقین کا کام ہمارے پاس نہیں ہے۔ بغیر دیکھے رب کو ڈرنا، اللہ کو میں نہیں دیکھی پھر بھی میں اللہ سے ڈرتوں، کب ہو، مجموعے میں نہیں، تنہائی میں، اکیلے میں۔
समझ में आता है? कोई बुराई करने वाली हूँ, अल्लाह मुझे देखता है, ये ख्याल आगा को तो मैं मुत्तकी परहेजगार। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनून, तुम नसीहत करो, ये नसीहत करना क्या होगा? सामने वालों को फायदा पहुंचाएगा, बोलते अल्लाह ताला। तो फायदा पहुंचाना को तो तुम्हें फायदा हासिल करने को से तैयार रहना। फायदा कैसा हासिल करेंगे? दिल खाली रखना। किसके वास्ते? दीन के वास्ते। अल्लाह एक चीज का हुक्म दे दले, उसे बजा लाने का कोशिश करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज का हुक्म दे दले, उसे पूरी करने की कोशिश करना। जैसे कि आपके सामने मैं आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिय रसूला वला तुबतिलु आमालकुम, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करो और अपने अमल को बर्बाद करो न को। अल्लाह की बात मानना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना है, और हमें करे सो नेकियों को हमें बर्बाद नहीं करना। अल्लाह ताला इतना अच्छा मौका दिया है औरतों को, क्या नहीं मिला है औरतों को? बोलो, इज्जत मिला है, आबरू मिला है, छत मिला है, साथी मिले ही, रिश्तेदार मिले ही, सहूलतें, हर चीज अल्लाह ताला मुहैया कर को है। फिर भी हमें औरत कने तन्हाई में पूछो क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीर तादाद में कई को औरत आई, क्या करती हैं औरतें? शौहर की नाशुक्री करती है और लानो तान करती है। हम इतने जने ही हैं, हमारा साथी है, हमारे शौहर, खास घर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, किराए के घर में ही किराया बनना, करंट बिल बनना, बच्चों का फीस, घर की पूरी जरूरत, पूरा तमाम चीज करते। जरूरत के टाइम हमने हॉस्पिटल को बुला लग जाना, रिश्तेदारों का घर को बुला लग जाना, जनाजे में, शादी में पूरा करते। कभी कभार उनसे कोई चूक हो जाती, नहीं होगा मैं आज करको बोल देते उन्हों, तो क्या पहला आता तुम्हारे में क्या भी मैं खैरियत देखीश नहीं। ये क्या होगा? शौहर का नाशुक्रीपन कर दले हमें। दूसरा क्या है? लानो तान करना। लानो तान का तो सिंपल बा, बाजू घर का बच्चा मेरा बच्चा को मार डालिया, मेरा बच्चा का हाथ पांव तोड़ गया, फौरन अल्लाह उसका बच्चा का हाथ पांव भी तोड़ डालना। समझ में आता? ये लानो तान बोलते, ये मर्दों में नहीं रहता। ये दो चीज की वजह से औरतें जहन्नम में जाते। ये दो चीज हमारे से कब जाएगा? बोलो, जब हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, मेरा रब हर 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 जो भी मुझे तकलीफ पहुंचता है उसका बदला देगा बोल कर हमें सब्र करे, शौहर की नाशुक्री से बचे। कोई मुश्किल परेशानी आगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बोलते हैं? इज़ा असाबतुम मुसीबतुन, तुमने कोई मुसीबत परेशानी आगा क्या बोलना? हालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यश ने सिखाया अल्लाह रब्बुल इज्जत। आज का माहौल में औरतों का हालत कैसा है मालूम? दीन बाद में, दीन के महफिल में हमें दीनदार बन को बैठ जाते, शादी के महफिल में दीनदार रहते कि हमें शादी का महफिल में कैसा रहता है? तो हमारा बनाओ सिंगर दूसरों को दिखाना, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह नूर में मना करते ही अपना जो भी बनाओ सिंगार है इसे छुपा कर रखो, जो दिख जाए उसके अलावा हर चीज को छुपाओ। इनके शौहर भी देख डलते, उनके शौहर भी देख डलते, कैसा मुनासिब होता? ये हमारे बन ठन को जाने की वजह से एक महफिल में हमें ये और एक महफिल में हमारा रूप अलग कर दो, तब हमें कौन हो गए? मुनाफिक हो गए। समझ में आता है? हशाश बशाश रहना, शादी में नाच गाना नहीं, कभी हंसी मजाक, नमाज का टाइम नहीं मालूम, मर्द बने से लिहाज बात करना नहीं, सो हद से पारों को बात करना, मजाक करना, ऐसे ऐसे रस्म रिवाज करना जिसे इस्लाम का ताल्लुक कुछ नहीं, पूरा करते। हमें सिर्फ बचपन में सोचेंगे पैर न बढ़ सका, दीनदार कौन सी जगह भी नहीं सुनो, अब पैर न बढ़ता शादी को नहीं डर होता, क्या भी नहीं बा फूल का हार डाल डालते बा, क्या भी नहीं बा मिस्त्री डालते बा, क्या भी नहीं बा निकाह का दावत कर डालते बा, क्या भी नहीं बा जहेज दे डालते बा, ये एक भी सुन्नत का तरीका नहीं। हमें क्या बच्चों को पढ़ाते? सो कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम कबूल करने वाले क्या बोलना? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व
वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, अच्छा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो मैं कसम खाती हूँ, सो क्या बोल को अल्लाह तुम्हें क्या बोले कि उसके खिलाफ मैं काम नहीं करूंगी। जब ये गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो क्या मैं कसम खाती हूँ, सो जो नबी लाए हैं हमारे वास्ते शरीयत, उसके खिलाफ मैं काम नहीं करूंगी। कान तक ही हमें सोचते घर में बर्थडे कर लिए, अल्लाह को नहीं मालूम होता, तुम्हारा ख्याल तुम्हें अल्लाह को ठगा दले, नहीं। अल्लाह ताला क्या है, इन्नहु अलीमुम बिजाती सुदूर, तुम्हारे दिलों के राजों को जानने वाला अल्लाह है। शादी का सालगिरह या दावत करे, नहीं, नया कपड़ा पहन लिए, लड़की पेट से हो गई उसका दावत कर लिए, बच्चा पैदा हो गया छिल्ला कर लिए, खतना होगा दावत कर लिए, बड़ी बच्ची होगी घर के तक को बुला को क्या कर दले, मेवे बना को खा लिए, नया कपड़ा पहना लिए। ये किसका रिवाज है? मुसलमान का। आज भी हमारे मुसलमान काली पोत को छोड़ते नहीं, आज भी हमारे मुसलमान छल्ला को छोड़ते नहीं, ये दो भी गैर मुसलमान का। ऐसे सुबह तो हमें कैसा सही होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत की 4 सरदार नहीं आए, बोल ये 4 सरदारनियों को जगह आसानी से मिल गया क्या? हजरत खदीजा रहंदे, हजरत फातिमा रहंदे, आसिया अलैहिस्सलाम रहंदे, और कौन बच गया? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। इन से आसानी से मिल गया? मुश्किल, परेशानी, तकलीफ, सबर 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 के बाद उनको जन्नत का सरदारनी का जगह मिला। हम ना एक तकलीफ आता, वो तकलीफ हमारे भान को नहीं हुआ, हमारे ननन को नहीं हुआ, तो कैसा हो जाता? हम ना ये तकलीफ हम ना आया, इनको क्यों नहीं आया? मैं इतना अच्छा काम करी हूँ, इन मंजे कहीं को ये परेशानी। समझ को देखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कौन ईमान वाला है कि उसके तरफ परेशानियां, आजमाइशा, पहाड़ से जिस तरह पानी उतरता है उस तरह से आजमाइशा, परेशानियां उसकी तरफ एक बा एक आते रंगा। उस मामले में हमें सब्र कर को आगे बढ़ते जाने के वास्ते जन्नत। आसिया अलैहिस्सलाम का ले लो, छोटा बोलतू, फिरौन की बीवी, फिरौन कौन? अल्लाह का खुला दुश्मन। अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं को बोले, सो कौन है? फिरौन। उनकी सोहबत में थे उनकी बीवी, अल्लाह पर ईमान लाए थे, उसकी वजह से बहुत सजा मिला, बहुत परेशानी तकलीफ। चुपके क्या कमाता नहीं, सुनो का बात नहीं सुने, तो आज क्या हाल है? बड़ा सल्तनत का बादशाह, उसकी बीवी उसकी बात नहीं मानी तो उसे क्या क्या सजा मिले रंगा। उनके तमाम सजा पर उन्होंने सबर करे, अल्लाह का ने दुआ करे, या अल्लाह मुझे इस जालिम से बचा ले, तेरे जन्नत में मुझे घर दे, तब जाकर उनको हासिल हो वो चीज। हमने क्या भी परेशानी नहीं है, मुश्किल नहीं है। आज की औरतें कैसे ही सहाबा का जिंदगी का तुमने उठा लग बैठ के तो खत्म नहीं होगा। क्या है हमने औरतों को आज काम? घर का पकवान, गैर मुसलमान भी पकवान करते हैं, फिर भी उनको टाइम है, हमारा औरतों को नहीं है। क्यों बोलो? 2 चीज की वजह से। पहला बड़ा टीवी शैतान, दूसरा फोन छोटा शैतान। बड़ा शैतान नहीं तो भी परवाह नहीं, एडजस्ट कर ले जा, लेकिन ये छोटा शैतान नहीं तो हमारा हाथ से रनने होगा नहीं। रात को 12 बजे हमारा पैक खत्म होता है तो सुबह को 8 बजे दुकान कब खुलेगा? हमारा पैक डाल को हमें स्टेटस देखना है, हमें फेसबुक देखना है, हमें यूट्यूब चेक करना है। ये सिलसिले में मसरूफ रहते। बच्चों को फोन की आदत की बात हमारे औरतों कुरान अब कैसा पढ़ते हैं? तर्जुमे के साथ पढ़ने टाइम है, पढ़े जा, बात देख ले जा। ऐसा कर को क्या होगा? कहता हमारे मुसलमान में क्या होगा मालूम? अभी इंडिया का सीरियल से पार्लियामेंट में देखते नहीं, मैंने मिलिया इसके बारे में डाटा कलेक्शन करता हूँ। पाकिस्तानी चैनल देखते सो, पाकिस्तानी सीरियल देखते सो, पाकिस्तानी चैनल के सीरियल हमें कोसा वजीफे बोलते कि वो पढ़कर हमें परेशानियां दूर करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई भी चीज को इतबार पढ़ने से तुम्हारा मुश्किल परेशानी दूर हो जाएगा। कोई भी सूरह को पढ़े तो तुम्हें दौलतमंद हो जाएंगे, कोई सा भी सूरह पढ़ ले तो तुम हमल टिक जाएगा। अल्लाह वादाच करे नहीं। हमें शॉर्टकट कैसे जाते हैं बोलो? क्योंकि हमें सही रास्ता छोड़ दले।
पहले बयाना में लोग कैसे रहेंगे पैरना बट में। हमारे वालिद साहब के जमाने से जगह नहीं रहेगा मर्दों को औरतों को। अब क्या बोलते हैं, मुझे दर्द है, मैं यहाँ जाना है, मैं वहां जाना है। वो पैरना बट में अब कपड़े की दुकान आजाद हो गई ही, वहां सेल्स क्लियरेंस सेल्स बोले तो कैसा को उतरते औरत। वजह क्या को तो ईमान में कमजोरी पड़ गया है, एक तो फोन की वजह से, एक तो टीवी की वजह से। ये दो चीजों से दूर रहना को तो क्या करना, हमें क्या करना, दिलों में इस्तिकामत पैदा करना। सहाबियात रहंदे, नबी की बीवियां रहंदे, किसी से नहीं कहा गया कि तुम्हें क्या करे जा, एक चीज को इतबार पड़े तो तुम्हें जन्नत को चल जाएंगे। यहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा क्या बोलते हैं, ए फातिमा तुझे क्या होना कि दुनिया में ले ले, आखिरत में मैं तेरा काम मांगा नहीं। नबी की बेटी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया आखिरत में तुम्हारा काम नहीं आऊंगा, तो हमें किसके भरोसे में, हिम्मत से ही कि क़यामत के दिन हमें पास हो जाएंगे, नहीं पास होंगे। जब तक हमारा ईमान पुख्ता नहीं होगा, हमारा अमल साले नहीं होगा, हमें कामयाब हरगिज नहीं होंगे। ईमान के साथ अमल होना, अमल कैसा, तन्हाई में भी सही रहना, बच्चे को सिखाने के टाइम कैसा रहना, खुद सही रहना, तभी बच्चा भी फॉलो करेगा उस चीज को। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाते हैं वालमो, और से सुनिए, वालमो जान लो या याद रखो, दो अल्फाज के वास्ते, अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी जो औलाद है, जो तुम्हारे माँ पास माल है, ये दोनों भी तुम्हारे वास्ते अल्लाह ताला दिया सो आजमाइश। हमें सोचते हमें बच्चियों को अच्छा कपड़ा पहना दले, बच्चों को अच्छा मेकअप कर दले, हमारे वास्ते कामयाबी खत्म। जरा बच्ची बढ़ गई तो क्या बोलते हैं, बच्ची बढ़ गई सास घर में नाम कमाए तो हमें पार हो गए, नहीं। बच्चे क़यामत के दिन वालिदैन अच्छा उसे तरबियत देखो, उन्हें जन्नत जाती देखो, तब तुम्हें कामयाब। ये माल और औलाद तुम्हारे वास्ते क्या ही आजमाइश है, ये उम्र तुम्हारे वास्ते आजमाइश है, ये जिंदगी तुम्हारे वास्ते आजमाइश है। कहीं को अपने आप को जन्नत के वास्ते तैयार करने के वास्ते, अपने आप को जहन्नम की तरफ ले जाने के वास्ते भी आजमाइश आएंगी। आजमाइश पर सब्र करना, शुक्र करना, अल्लाह से तौबा करना, नमाज की पाबंदी रहने, रोजे की पाबंदी रहने, सच बोलना, भी सिखाना है बच्चे को। कैसा सिखाना, हक बात बोलो, झूठ बोलो नको, अल्लाह से डरो। बच्चों के साथ रिश्तेदारी के बारे में बुराई नहीं करना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कोई भी खता रहमी करता है, रिश्ता तोड़ता है, वो जहन्नमी है। आज मर्दों से ज्यादा औरतें ही जो क्या करते, ज्यादा से ज्यादा रिश्ता तोड़ लेते। इसके घर को जाना नहीं, उससे बात करना नहीं, उससे मिलना नहीं, ये चीज क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कोई भी अपना उम्र बढ़ाना चाहता है, दुनिया में अपना रिस्क बढ़ा लेना चाहता है, वो क्या करे, खता रहमी को छोड़े, सुलह रहमी करे। जिससे बात करना छोड़ दे, नहीं उनसे सिर्फ मिल को बात करो बोलते। हमें जन्नत को जाने के वास्ते आसान जरिया क्या मालूम, इबादत। अल्लाह मन से देखता है, अल्लाह के सामने मन से क़यामत को हाजिर होना है। तुमने सबको मालूम है या नहीं मालूम नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमने खबर में जो सवाल बोले हैं वो किसके बिना पर मालूम, ईमान के बिना पर। तुम्हें दुनिया में मजमू में रहने या इंडिविजुअल अकेला भी रहने, गुनाह करते ही, गुनाह करने का मौका आता तब ख्याल करते मेरा रब मुझे देखता है बोल को, तो खबर में तुम्हें जवाब देंगे रब्बी अल्लाह। दुनिया में तुम्हें सुन्नत रसूल पर अमल करे, चाहे शादी हो चाहे मैयत हो, जो भी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपना को चले तुम्हें, तो तुमने जवाब आंगा तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हें कुरान मजीद पर अमल करते रहे तो जवाब तुमने कुरान मजीद का आंगा सो। तो क्या मालूम के बात, ईमान के बारे में सवाल खबर में होगा। हमें सोच नहीं जात मन टक 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 फरिश्ते पूछेंगे, हमें टक टक का जवाब देंगे, बच को निकल जाएंगे, नहीं। दुनिया में तुम्हारा ईमान कैसा था उसके बिना पर तुम्हारे से सवाल पूछा जाएगा। और क़यामत का जो सवाल है अमल के बारे में, तुम्हें जिंदा रखो, दुनिया में क्या क्या अमल करे, इसके बारे में सवाल क़यामत के दिन होगा। सो तो तुम्हें खबर में कामयाब हो गए तो आखिरत का पहला सीढ़ी पास। खबर में कामयाब होना है
तो कैसा रहना, इस्तकामत के साथ रहना। औरता में सहाबा कैसा थे, पानी नहीं, खाने नहीं, कपड़े नहीं, इतना मुश्किल में थे सहाबा। उन लोग जिए सो जीना क्या हमारा मुश्किल दिखता है, आसान दिखता है हमना, उनके सामने हमें क्या बीच नहीं। अभी ते औरता ही कितना बुरखा है पूछो तो 3 से कम कौन बीच बोलेंगे नहीं। एक मैयत घर को, एक शादी घर को, एक नया बीरू में है सो 3 से कम कौन भी बोलेंगे नहीं। नबी के जमाने में पहनने कपड़ा नहीं, सहाबा क्या बोलते, अल्लाह के रसूल मैंने फला औरत से शादी कर दलो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कहती भी मेहर है क्या बदेने नहीं है, चाहे घर में जाकर सर्च कर दल का, उन्होंने देख को आते क्या बीच नहीं है। तो उन्होंने सहाबा क्या बोलते, अल्लाह के रसूल मेरे पास एक तहबंद है लुंगी का कपड़ा, उसे मैं आधा फाड़ को मेहर कर को दे डालता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते जब तू उसे दुआ अदा करेगा ना तुझे काम आएगा ना तेरी जरूर काम आएगा। कुरान से कौन सा सूरा याद है, उन्होंने बोलते फलां फला सूरा याद है, तो तेरा मेहर ये है कि तू उसको याद दिला देना, तेरा मेहर है बोलते। उतना मुश्किल है हम ना, आज अल्लाह आसान कराया है, छत दिया है, सहूलत दिया है, सेहत दिया है, तंदुरुस्ती दिया है, हलाल कमाई दिया है, इसका शुक्र करना हमें, ना शुक्री की जिंदगी को छोड़ डालना। कब भी तुम्हारे जुबान में ना शुक्री आया तो ख्याल कर लो आई एम द फर्स्ट टू बी इन द हिल, मैं पहला जहन्नम में जाने वाली हूँ, का ख्याल कर लो। देखो अल्लाह का शुक्र आ जाएगा। एक चीज तुमने हासिल नहीं हुआ है सो चीज को देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज मेरे पास है। बच्चों में भी ये आदत डालो, उन्होंने तमन्ना करे सो पूरा चीज, उन्होंने मांगे सो पूरा चीज तुम्हें सहूलत करते करते दे दल गए तो उनको क्या नहीं होगा, वो दर्द नहीं आएगा जो तुम्हें तुम्हारे बचपन में तुमने मिलिया नहीं। सो हर बात किस तरफ ले जाना, अल्लाह अल्लाह हम न देखता है, अल्लाह हमारा सुनेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सही, जब हमारी जिंदगी में सुन्नत से हमें मुंह मोड़ना शुरू कर डालते तो समझ लो अल्लाह हमारे से हाथ झटक डालता। काफिरों को कैसा छोड़ डले ही, माल दौलत नाम कमाई पूरा दे क्या कर डले हैं, आवा तुझे खयामत में देख तुम करते नहीं है, वैसा अल्लाह ताला छोड़ डालेंगे। किसे बार बार आजमाइश आती है, मुश्किल आती है, परेशानी आती है, सोचो हमें सही रास्ते पे ही अल्लाह हमने आजमाता है। अल्लाह इस आजमाइश में हमने कामयाब कर, इससे ज्यादा हमने आजमाना को बोल को क्या करना, हमारे ईमान को मजबूत करना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोले तो अच्छा, अल्लाह बोल डालेगा तो फौरन मान लेना वो चीज। निके के दावत को आ जाओ बा, मिसाल को कौन बोलते, क्या बोलते बोलो, इंशाअल्लाह बोलते। निक्का का दावत इस्लाम में नहीं ना बा, काम बोलते हैं हमें। एक जने बोलेगे तो तुम्हारे पास इतना पैसा है ना भाई, निके के दावत डालेंगे नहीं क्या, उसे जवाब क्या देना। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में निक्का का दावत नहीं बा, उसे में दावत दिया नहीं। सूरत में कीमत तुमना निखाब पे नहीं, पैर न बट के लोग घूर को देखते, जवाब ये चाहता। सो पैर न बट के लोग घूर को देखते, कितने दिन देखेंगे घूर को। बोलो बा, अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या बोलता है, मर्दों को भी औरतों को भी क्या बोलते हैं, अपनी निगाहें नीची कर को चलो, बस उसके अलावा उन्हें हम न देखते तो उनको गुनाह, अपने आप को सही करना शुरू कर दो। अल्लाह बोल डाले उसके बाद किसका भी जरूरत नहीं। हमने अपनी आवाज को क्या करो, दबी आवाज में बात करो, नको बोलते अल्लाह ताला। दबी आवाज में तो कपड़े की दुकान को जाते हैं, 3000 रुपए का कपड़ा परचेस करते हैं, 250 को दे, 2,500 को दे डलना बा। समझ में आता कि उसके पास ऐसा बात करना, सामने वाले के दिल में अगर कोई बुराई है तो वो जाग जाएगा। अरबी में अल्लाह ताला मर्ज बोल को इस्तेमाल करते, बीमारी बोल को। समझ में आता, हमारे औरतें किस किस के पास ऐसा बात करते हैं, ऑटो वाला, दूध वाला, सिलेंडर वाला, सबके पास ऐसा बात करते, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज को मना करते, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी से मना करते। हमें सही करने को वैसे एक स्टेप बोलती हूँ सो तुम ना मैं, समझ में आता। हमें अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक जीना है अपना जिंदगी, हमें अपने आप को कामयाब करना है। कहाँ कामयाब होंगे सो, नौशु को 2 दुकान, हमने खास बंगला जगह अच्छा बेटा, अच्छा तो कामयाबी क्या है, जिंदगी का साज और सामान नहीं। अच्छा क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद दुनिया मताउन, दुनिया क्या है, एक बहुत अच्छा सामान का जगह, खजाना। अद दुनिया मताउन व खैर मता, दुनिया क्या है,
ये दुनिया में सबसे बेहतर माल कौन सा मलन की है? अलमरातु सालिहा, नेक बीवी करके बोलते हैं। तुम नबी मंजेज बोले हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नेक बीवियां चाहिए, दुनिया का बेस्ट खजाना बोलेगी। तो ये खजाना कैसा रहना? जन्नत को जाने की, जहन्नम में जाना की? सवाल तुम्हारे से अच्छा, जन्नत में जाना है तो क्या करना? हमें अपने आप को तैयार करना, अपने बच्चों को क्या समझना, तुम्हारे सदका जारिया है ना, उनको ट्रेन कैसा करना का? तो तुम्हें मरने बाद भी तुम्हारे बच्चा 60 साल 70 साल जिंदा है, उन्हें करते सो नेकी का एक हिस्सा तुम मिलते रहना। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ कर, तो अल्लाह ताला तुम नबी मन से भी जितना बोलने और सुनने का मौका दिया है, इससे ज्यादा अमल कर को जन्नतुल फिरदौस में इंशाल्लाह हम तमाम को जगह देना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व